Now today we shall discuss the next bit, and that is a minor affine elements. Here today we shall discuss the new bit, that is a minor affine element, and in that minor, 1 minute, actually in this minor of the element and the cofactors of the elements which are arrived in the determinants. That means we have to find out the minors and cofactors of the elements of the determinant. See this. Now actually this is the first part which we have studied, that is the definition, expansion of determinant of order 2, expansion of a determinant of order 3, and also we have defined the nth order determinant. Today we shall discuss the next bit, that is a minor and cofactors of the elements. See this. This is the definition of the determinant of order 2. What is the definition? A determinant of order 2 is a square arrangement of 4 elements which are enclosed between 2 vertical bars. The elements are arranged in 2 rows and 2 columns. See this. Vertical lines means column, horizontal lines means rows. Okay. Also, this is the definition of order determinant of order 3. In that determinant of order 3, there are 3 rows and 3 columns. That means 3 into 3 means 9 elements. See this. And these 9 elements are arranged into the 3 rows and 3 columns. Rows means horizontal lines, columns means vertical lines. That means there are 9 elements. So the definition of this determinant is a determinant of order 3 is a square arrangement of 9 elements which are enclosed between 2 vertical bars. The elements are arranged in 3 rows and 3 columns. Okay, this is the definition of order 3 by 3. यामध्ये जो Aij आपण वापरलेला असतो, that element is called as a element of a determinant. आता यात जो फर्स्ट सफिक्स आहे सा, हा I म्हणजे जो फर्स्ट सफिक्स आहे, that is a row number which represents no number, and J means the second suffix represent column number. म्हणजे त्याची आडवी लाईन कोणती आहे आणि उभी लाईन कोणती आहे हे दाखवलं जातं. ठीक आहे. नेक्स्ट, दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n. यहाँ पे जो हमने 3 by 3 का डिटर्मिनेंट डिस्कस किया, उसी तरह से n by n का डिटर्मिनेंट है. अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n is a square arrangement of n by n. n means horizontal lines element n, vertical lines element n, then n by n elements into 2 vertical bars, which is denoted by this n by n. आता a11, a21 means these are the suffix element. इथं पहा, aij means the same, I means row number, j means column number. Now today we shall discuss the definition regarding the minors and cofactors of the elements. Okay. Now write down first the definition of the minor of element. See this definition. First, minor. How to define the minor definition of the minor element? Now see this. In the determinant, there are 9 elements. First element is a11, second element is a12. a11 म्हणजे पहिल्या आडव्या लाईन मधला पहिला एलिमेंट, a12 म्हणजे पहिल्या आडव्या लाईन मधला दुसरा एलिमेंट, a13 म्हणजे पहिल्या आडव्या लाईन मधला तिसरा एलिमेंट. ओके. मग a21 म्हणजे दुसऱ्या रो मधला फर्स्ट एलिमेंट, a22 म्हणजे दुसऱ्या रो मधला सेकंड एलिमेंट, a23 म्हणजे दुसऱ्या रो मधला थर्ड एलिमेंट. ओके. So we shall discuss now this determinant definition. What is the determinant and what is the definitions here? The minor of any element definition. The minor of any element aij, a suffix ij means a11, a22. Generally these elements are denoted by aij. म्हणजे हे जे डिटर्मिनंट मध्ये एलिमेंट्स आहेत त्यांना आपण जनरली aij म्हणतो. that can be written as. okay.
the minor of an element Aij is the determinant by deleting ith row and jth column. Full stop. See this is the definition. The minor of an element Aij means A11, A12, whatever may be. Generally आपण Aij लिहितो त्याला. Aij is the determinant by deleting ith row and jth column. Full stop. The minor, next paragraph मध्ये लिहायचं, the minor of Aij is denoted by minor of element Aij is denoted by capital Mij. Minor of an element Aij is denoted by capital Aij. Now see here, for example, see this. Let D is equals to this element, general element we have considered. D is equals to A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. अभी हमें क्या करना है, इसका माइनर निकालना है. कितने एलिमेंट्स है? जो भी बच्चा ऑनलाइन है, यहाँ पे स्टूडेंट जो भी ऑनलाइन है, आप इसको यहाँ इस डिटर्मिनेंट में कितने एलिमेंट है यहाँ पे आप बताइए, चैट बॉक्स में बोलो कितने एलिमेंट्स है. दिस डिटर्मिनेंट इज शॉर्टली रिटन एज डिटर्मिनेंट ऑफ Aij of order 3. So now in this determinant actually there are 9 elements. How many elements are there? See this, in this determinant there are 9 elements. So each element having its minor. म्हणजे डिटरमिनेंट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ओके, 3 by 3 rows and 3 columns, that means 9 elements. जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हर एक एलिमेंट को उसका अलग माइनर होता है. अगर यहां पे 9 एलिमेंट्स है तो उसके 9 माइनर्स होते हैं. तो आप हर एक एलिमेंट को माइनर एक एक आप निकाल सकते हैं. सो फर्स्ट एलिमेंट, हा रवींद्र कांबळे गुरव, व्हेरी गुड. इथं टोटल 9 एलिमेंट्स आहेत पण हे जनरली दाखवलेले आहेत. आता आपण फर्स्ट नंबर 1 चा एक काढू. फर्स्ट पहिला एलिमेंट कुठला आहे पहा, A11. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट माइनर ऑफ A11. यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है A11 उसका माइनर कैसा निकालते हैं देखते हैं. द माइनर ऑफ A11 which is denoted by capital M11 and which is determinant. अभी क्या करना है देखो डेफिनेशन. डिटर्मिनेंट Aij का माइनर निकालना है तो Aij का ith रो और jth कॉलम डिलीट करना है. वैसा A11 का अगर माइनर निकालना है हमें A11 का तो उसका रो और A11 का ही कॉलम डिलीट करना है. यानी कि यू हैव टू डिलीट दिस. सी दिस, नाउ डिलीट दिस. हा पण A11 एलिमेंट घेतला सुरुवातीला, त्याचा रो डिलीट करा, त्याचा कॉलम डिलीट करा. सी दिस, वी हैव डिलीटेड रो अँड कॉलम ऑफ दिस डिटर्मिनंट. ओके, मग आता हा रो आणि कॉलम डिलीट केल्यामुळं काय होतं, कुठले एलिमेंट 4 राहतात पहा. A22, A23, थोड़ा ओके 1 मिनट. A22, A23, A32, A33. अभी ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना है.
इसी तरह से ये हम माइनर A11 का माइनर निकाल सकते हैं। अभी हम दूसरे एलिमेंट का माइनर निकालना है। समझो हमें अभी किसका माइनर निकालना है, A21 का माइनर निकालना है। द माइनर ऑफ A12, अभी A12 का माइनर विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल M12, माइनर यानी कि M विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल M12। अभी वो कैसे निकालते हैं आपको बताता हूं मैं। अभी हमें इसका माइनर निकालना है। कौन से एलिमेंट का माइनर निकालना है? सी दिस आवर एम इज टू फाइंड आउट द माइनर ऑफ एलिमेंट A12। यहां पे A12 का माइनर निकालना है, तो A12 का माइनर निकालना है। तो अगर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन व्हाट वी कैन से दैट, अगर A12 का माइनर निकालना है तो उसका रो और उसका कॉलम डिलीट करके आने वाले एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। सो A12 यानी कि ये एलिमेंट है मिडल का, तो उसका रो म्हणजे आडवी लाइन आणि उसकी वर्टिकल लाइन मीन्स कॉलम, ये दोनों डिलीट कर दो। कौन से 4 एलिमेंट रहते हैं? देखो ये रह गया A21, दूसरा कौन सा है A23, तीसरा कौन सा है A31 एंड A33। इसी तरह से हम इसका सॉल्यूशन, अभी आपको पता है 2/2 का डिटरमिनेंट कैसा सॉल्व होता है? सबट्रॅक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, तिरकस गुणाकाराची वजाबाकी घ्या म्हणजे 2/2 चा डिटरमिनेंट होतो। ठीक आहे, आता आपल्याला थर्ड एलिमेंटचा मायनर काढायचा आहे। हाऊ टू फाइंड आउट 3, द मायनर ऑफ A13 which is denoted by M13। हाउ टू कैलकुलेट दिस माइनस here? अभी क्या करना है? देखो A13 कौन सा एलिमेंट है? से दिस 1 मिनट। हाँ ओके, अभी क्या करना है? देखो हमें A13 का माइनर निकालना, इस थर्ड एलिमेंट का, जो जिसका भी माइनर निकालना है उसका रो और कॉलम डिलीट करना है। A13 का मतलब क्या है? A13 यानी कि फर्स्ट रो। A13 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, यानी कि पहला रो और तीसरा कॉलम हमें निकालना है। तो पहला रो और तीसरा कॉलम डिलीट कर दो, ये रो और ये कॉलम डिलीट कर दो। तो कौन से 4 एलिमेंट रहते हैं? देखो A21, A22, A31, A32 मीन्स A21, A22, A31, A32। अभी इसका सॉल्यूशन निकाल दो, माइनर होता है। इसी तरह से हम हर एक 9 एलिमेंट्स के माइनर निकाल सकते हैं। अभी हम दूसरे एलिमेंट का एक बताते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको माइनर निकालना है, किसका माइनर निकालना है? सपोज हमें इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, A23 का माइनर निकालना है। सो वी कैन डिस्कस द माइनर अबाउट A32। द माइनर ऑफ A23 which is denoted by M23 which is the determinant of, अभी क्या करना है? देखो उसका माइनर निकालना है। सी दिस, हाउ टू कैलकुलेट माइनर? A23 का माइनर, A23 यानी कि ये एलिमेंट है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, हमें डेफिनेशन क्या बताती है? इसका रो और जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उसका रो, यानी कि A23 का रो डिलीट कर दो और उसी का कॉलम डिलीट कर दो। ये देखो उसी का कॉलम डिलीट कर दिए। अभी कौन से एलिमेंट्स रह गए? देखो A11, A12, A31, A32। अभी उसका डिटरमिनेंट निकालना है। A11, A12, A31, A32। ओके, अभी अब जनरली हम एक अलग एलिमेंट का माइनर निकालते हैं। सपोज 5th, द माइनर ऑफ सपोज A22 which is denoted by M22।
तो हाउ टू कैलकुलेट, इसी तरह से 9 एलिमेंट के 9 माइनर निकाल सकते हैं। मैं खाली एक एग्जांपल आपको बता दूंगा, बाकी के आप लिख सकते हो, सभी आप लिखना है, सभी एलिमेंट्स के लिखना है। A11, A12, A13, A21, A22। अभी A22 का हमें माइनर निकालना है सीधे, A22 का माइनर निकालना है, इस एलिमेंट का माइनर निकालना है A22 का। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन व्हाट वी हैव टू डू, हमें उसका रो, ये देखो रो, और उसी का कॉलम, ये देखो कॉलम डिलीट करना है बस। बाकी 4 एलिमेंट्स रहते, उसका माइनर निकालना है। तो कौन से 4 एलिमेंट रहेंगे, देखो A11, A12, A21, A31, A33, that is A11, A13, A31, A33। इसी तरह से हम इस डिटर्मिनेंट के माइनर निकाल सकते हैं। सो वी कैन कैलकुलेट दिस। अभी क्या करना है, इसी तरह से आप 9 एलिमेंट्स के निकाल सकते हो। अगर 2 by 2 का डिटर्मिनेंट है, एग्जाम्पल सेकंड, सपोर्ट एग्जाम्पल सेकंड, लेट D is equals to, we have given the determinant D is equals to, what is that, A11, A12, A21, A22। तो बहुत सिंपल है, यहां पे फर्स्ट माइनर ऑफ A11 इज इक्वल्स टू कैपिटल M11 इज इक्वल्स टू, बहुत सिंपल है। अभी A11 का रो और कॉलम डिलीट कर दीजिए, खाली एक एलिमेंट रहता है, वो रहता है A22, बस। इसका डिटरमिनेंट भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सेकंड, माइनर ऑफ A12 विच इज इक्वल्स टू M12। अभी A12 का माइनर निकालना है, तो हम इसे क्या निकाल सकते हैं, A21, डायरेक्टली उसका रो और उसका कॉलम डिलीट करो, A12, A21। सी, अगर आपको A21 का माइनर निकालना है, माइनर ऑफ A21 विच इज इक्वल्स टू M21 विच इज इक्वल्स टू, अभी ये इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो रो और कॉलम डिलीट कर दो। तो इसी तरह से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, देखो, वी कैन राइट एज A12। अभी जो भी बच्चे ऑनलाइन है, स्टूडेंट्स who are online in this live lecture, you tell me what is the minor of, which element gives the result as a minor of A22। बताइए आंसर क्या आता है माइनर ऑफ A22 का, जो भी बच्चा ऑनलाइन है, स्टूडेंट बताइए। फॉर माइनर ऑफ A22 विच इज डिनोटेड बाय M22, अभी इसकी वैल्यू क्या आती है आप ही देख लीजिए। ओके, ये हो गया डेफिनेशन माइनर के बारे में। 9 एलिमेंट्स के लिए 9 माइनर्स होते हैं, इसी तरह से हम 9 एलिमेंट के अलग अलग 9 माइनर्स निकाल सकते हैं। आप, मैंने खाली 5 एलिमेंट्स के माइनर निकाल दिए, वेरी गुड अनिरुद्ध गुरु, वेरी गुड। मैंने यहाँ पे खाली 5 एलिमेंट्स के माइनर निकाल दिए, आप 9 एलिमेंट्स के माइनर निकालना है। अभी हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन, संकेत नरुटे, वेरी गुड। व्हाट इज द डेफिनेशन हियर, नेक्स्ट डेफिनेशन वी शैल डिस्कस द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स। राइट डाउन नेक्स्ट डेफिनेशन, गर्जे, वेरी गुड। कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट, अगर माइनर को उसके पोजीशन साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप उसका कोफैक्टर निकाल सकते हो। खाली सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। माइनर एलिमेंट को कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। 9 एलिमेंट के अगेन कोफैक्टर 9 होते हैं, 9। तो मैं यहां पे डेफिनेशन लिखता हूं, द कोफैक्टर ऑफ, ये अलग है, कोफैक्टर की डेफिनेशन है, पहले माइनर की थी। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ये आई जे
is denoted by Cij. कोफैक्टर किस तरह से डिनोट किया जाता है? Cij. एंड it is given by, here we can write here Cij, which is equals to minus 1 raised to I plus j into Mij. यानी कि माइनर को, ये फॉर्मूला है देखो कोफैक्टर का, कोफैक्टर फर्स्ट एलिमेंट का अगर आपको कोफैक्टर निकालना है तो उसके माइनर को माइनस 1 रेज टू आई प्लस जे से मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया कोफैक्टर का फॉर्मूला। अभी इसको कैसे सॉल्व किया जाता है मैं अभी बताता हूं। सी दिस, सपोज दिस इज 1, first, write down first. So again I shall define this. The cofactor of an element Aij is denoted by Cij and it is given by Cij is equals to, this is the formula, Cij is equals to minus 1 raised to I plus j into Mij. This is the definition or the formula for the cofactors. So अभी कैसे निकाल सकते हैं देखो, the cofactor माइनर के सेम, the cofactor of Aij which is denoted by Cij and which is equals to, what is that formula? minus 1 raised to I plus j into Mij. ये फॉर्मूला है देखो सबसे बड़ी बात कोफैक्टर के लिए। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर निकालता हूं। फर्स्ट एलिमेंट का, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? A11 का मुझे कोफैक्टर निकालना है, तो आप निकाल दीजिए द कोफैक्टर ऑफ A11, A11 यानी कि फर्स्ट एलिमेंट विच इज डिनोटेड बाय C11 एंड विच इज इक्वल्स टू, यहां पे सी दिस I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 1 है, तो फॉर्मूला में पुटअप करो माइनस 1 रेज टू 1 प्लस 1। इस फॉर्मूला में व्हाट इज दैट फॉर्मूला? माइनस 1 रेज टू I प्लस j इंटू Mij मीन्स M11। ओके, इसी तरह से हमें कैलकुलेट करना है। तो C11 इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू 1 प्लस 1 इंटू M11। तो हमें सॉल्व करना है इसी तरह से। तो कैलकुलेट कीजिए C11 इज इक्वल्स टू माइनस 1 रेज टू 2 इंटू M11। M11 का मतलब माइनर होता है, सी दिस, यहां पे देख लीजिए M11 यानी कि माइनर होता है। माइनर कैसे कैलकुलेट किया जाता है देखो आप, यहां पे इसका रो, A11 का रो और A11 का कॉलम डिलीट कीजिए, जो भी डिटर्मिनेंट आता है उसकी वैल्यू लिख दीजिए। A22, A23, A32, A33 और इसी तरह से माइनस 1 का स्क्वायर प्लस आता है तो ये वैल्यू होते। यानी कि कोफैक्टर का मतलब है कि डिटर्मिनेंट के जो माइनर को पोजीशन साइन से मल्टीप्लाई करना है, प्लस और माइनस, माइनस 1 स्क्वायर प्लस आती है यानी कि प्लस से मल्टीप्लाई करना। ऑड पोजीशन है, ऑड पोजीशन यानी 1 प्लस 2, तो इसका मतलब होता है इसी तरह से आपको कैलकुलेट करना है। ये फॉर्मूले वगैरह आप अच्छी तरह से लिख लीजिए, मैं अभी एक एग्जांपल लेता हूं तो आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। राइट डाउन प्रॉब्लम फर्स्ट, राइट डाउन प्रॉब्लम फर्स्ट। व्हाट इज दैट प्रॉब्लम? find the minor, find the minors and cofactors of the elements
minors and cofactors of the elements of determinant. तो सबसे पहला जो डिटर्मिनेंट है हम उसे फर्स्ट प्रॉब्लम दैट इज 2 minus 1 3 1 2 minus 1 फिर 5 7 2। अभी इसी डिटर्मिनेंट का आपको माइनर और कोफैक्टर निकालना है, तो हम आंसर में आंसर लेते हैं। लेट गिवन डिटर्मिनेंट इज गिवन दैट d is equals to, we have given what is that, what 2 minus 1 3 1 2 minus 1 3 7 2। okay, now we have to solve this determinant। हेलो, आवाज नहीं आ रही है तुषार चौहान, आवाज नहीं आ रही है क्या प्रॉपरली? आप हेलो तुषार चौहान, आवाज नहीं आ रहे? ओके, मैं फिर से बताता हूं। सी दिस, वी कैन रिप्रेजेंट दिस डिटर्मिनेंट इन द कॉमन फॉर्म। हाउ टू राइट? a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। okay, you have presented this determinant in the general form। अभी हमें फर्स्ट माइनर निकालना है। फर्स्ट यहां पे 9 एलिमेंट्स है, तो 9 एलिमेंट्स के 9 माइनर्स आपको निकालना है। फर्स्ट द माइनर ऑफ एलिमेंट A11 which is denoted by M11 which is equals to determinant by deleting ith row and jth column। A11 यानी कि इस एलिमेंट का माइनर निकालना है हमें, फर्स्ट एलिमेंट का। तो क्या करना है, उसी का रो और उसी को कॉलम डिलीट करना है। 2 यहाँ पे इसका एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो रो और कॉलम डिलीट कर दो। कौन से एलिमेंट रहते हैं देखो, 2 minus 1 7 2, सॉल्व कीजिए। इसका सॉल्यूशन कैसा होता है, 2 into 2, अभी 2 by 2 का डिटरमिनेंट है तो सब्ट्रैक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि 2 into 2 minus 1 into 7 that is 4 plus 7 that is equals to 11। ये हो गया माइनर। अभी हमें कोफैक्टर निकालना है, देयरफॉर कोफैक्टर C11, कोफैक्टर कैसे डिनोट करते हैं, कोफैक्टर C11 इज इक्वल्स टू -1 raised to 1 plus 1 into M11। कोफैक्टर का फॉर्मूला देख लीजिए आप क्या है, Cij C11 इज इक्वल्स टू -1 raised to 1 plus 1 into M11। अभी इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। we can write as a C11 is equals to -1 raised to 2 into M11 की वैल्यू कितनी आई है, 11 है, देखो 11। so put this value 11 -1 स्क्वायर यानी कि 1 into 11, इसका मतलब आता है 11। वेरी गुड संकेत नरूटे गरजे गुरव, वेरी गुड। अभी दूसरा निकालना, अभी 9 एलिमेंट्स के निकालने, बहुत अच्छी तरह से स्लोली निकाल दीजिए। सेकंड द माइनर ऑफ A12, सेकंड एलिमेंट कौन सा है देखो, ये हो गया, अभी यहां आना है सेकंड एलिमेंट में A12, फिर A13, इसी तरह से जाना है। तो अगर A12 का माइनर निकालना है, minor of A12 which is denoted by M12 which is equals to the determinant by deleting its row and column। अभी A12 यानी कि ये एलिमेंट है, देखो -1 है, तो -1 का रो और -1 का कॉलम आपको डिलीट करना है, यानी कि ये रो
और ये कॉलम आपको डिलीट करना है, -1 का निकालना है। तो कौन से 4 एलिमेंट रहते हैं? देखो 1 -1 3 2, 1 -1 3 2, that is equals to 1 into 2 minus 1 into 3, that is 2 plus 3, that is 5। ये हो गया M12। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क, आई शैल रिपीट दैट ऑल द सॉल्यूशन। इफ यू आर troublesome understanding some steps, then I shall repeat that steps। so आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बताइए मुझे क्या आता है क्या नहीं आता, मैं बताऊंगा। ओके वेरी गुड अनिरुद्ध गुरु, वेरी गुड। अभी सभी बच्चे ने आंसर देना है, जो भी बच्चे जितने भी बच्चे ऑनलाइन है सभी बच्चे ने आंसर देना है, खाली 1-2 बच्चों ने आंसर नहीं देना है। स्टूडेंट सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट को मैं ये बताना चाहता हूं कि आंसर मेरे साथ में देना है आपको। अभी को फैक्टर निकालना है, द को फैक्टर of A12 which is denoted by C12 which is equals to -1 raised to 1 plus 2 into M12। I यानी कि 1, J यानी कि 1, तो इसका मतलब होता है -1 raised to 3 into M12 की वैल्यू है 5। अभी यहाँ पे -1 का क्यूब कितना आता है? -1 into 5 यानी कि -5। ये सॉल्यूशन आ गया -5। वेरी गुड वैष्णवी दमकोंडवार, यू आर करेक्ट। यहाँ पे इसी तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। ये हो गए A12 का। अभी हमें थर्ड एलिमेंट का, ऐसे 9 एलिमेंट का निकालना है। थर्ड एलिमेंट का निकाल सकते हो, द माइनर ऑफ A13 which is denoted by M13 which is equals to the determinant deleting, हा डिटर्मिनंट घ्यायचा कसा? डिलीटिंग फर्स्ट रो आणि थर्ड कॉलम। M13 याचा अर्थ फर्स्ट रो डिलीट करा आणि थर्ड कॉलम डिलीट करायचं। फर्स्ट रो आणि थर्ड कॉलम डिलीट करा M13। आता फर्स्ट रो आणि थर्ड कॉलम डिलीट केल्यानंतर काय येतं पहा, थोडक्यात पहा। वी शैल डिलीट नाउ फर्स्ट रो A13, इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, यानी कि इसका माइनर निकालना है 3 का। तो क्या करना है? 3 का रो और 3 का कॉलम डिलीट करना है। कितने एलिमेंट्स रह गए? 4। उसका डिटरमिनेंट लेना है 1 2 3 7, यानी कि वी कैन पुट दिस 1 2 3 7। नाउ कैलकुलेट दिस, 1 into 7 minus 2 into 3, subtraction of cross product, that is 7 minus 6, that is equals to 1। then the cofactor of A13 which is equals to C13, तो उसका फॉर्मूला कौन सा है? Cij। अगर आप लिख सकते हैं तो Cij इक्वल्स टू -1 रेज टू I प्लस j इंटू Mij, ये फॉर्मूला है। यानी कि I यानी कि 1 है, j यानी कि 1 है, तो वी कैन राइट -1 रेज टू 1 प्लस 3 इंटू Mij, that is a -1 raised to 4 into M13 है। यहाँ पे M13 की वैल्यू कितने है? 1। -1 का 4 यानी कि 1 होता है इंटू 1, -1 का 4 पॉजिटिव पावर होता है, तो उसकी वैल्यू आती है 1। ये हो गया C13 को फैक्टर ऑफ फर्स्ट रो मधल्या थर्ड एलिमेंटचा। 13 का मतलब फर्स्ट रो मधला थर्ड एलिमेंट। ओके, तो अभी फोर्थ, हमें फोर्थ सॉल्व करना है। देखो यहां तक आ गए हम। अभी हमें क्या करना है? देखो सी दिस, हाँ, तो ये 13 का माइनर हो गया। अभी
ये 2 1 का यहां आना है, देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तीनों के हो गया। अभी ये 2 1 का माइनर लेना है, ये 2 1 का सेकंड रो में का फर्स्ट एलिमेंट का, तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है। तो इस 1 का माइनर निकालना है हमें, इस 1 का माइनर निकालना है, तो उसी का रो और उसी का ही कॉलम डिलीट करना है। जो भी 4 एलिमेंट्स रहते हैं उसके डिटरमिनेंट लेना है। -1372 द माइनर ऑफ ये 2 1 which is denoted by m21 which is equals to डिटरमिनेंट ऑफ, कौन सा डिटरमिनेंट है देखिए आप, -1372 -1372 okay, now calculate this, -1 into 2 -3 into 7, सब्ट्रैक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो कैलकुलेट दिस, -2 -21 दैट इज -23। अभी इसका कोफैक्टर, उसी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। द कोफैक्टर ऑफ ये 2 1 विच इज डिनोटेड बाय C21 विच इज इक्वल्स टू -1 रेज टू 2 + 1, 2 1 है ना, 2 1 यानी कि 2 + 1 इंटू m21। सो ये हो गई m21 की वैल्यू, यानी कि -1 रेज टू 3 इंटू -23। वेरी गुड संकेत नरुटे। -1 का क्यूब कितना आता है, -1 इंटू -23, इसका मतलब आता है +23। ओके, यस वैष्णवी दमकोंडवार, वेरी गुड। नेक्स्ट वी शैल सॉल्व दिस फोर्थ, फिफ्थ। अभी फिफ्थ एलिमेंट का माइनर निकालना है। द माइनर ऑफ ये 2 2 विच इज डिनोटेड बाय m22 विच इज गिवन बाय डिटर्मिनेंट बाय डिलीटिंग, यानी कि ये देखो अभी क्या, आकाश शेवाड़े, वेरी गुड। अभी क्या करते हैं, देखो हमें किसका माइनर निकालना है, यहां तक आ गए हम, देखो उधर जनरल ये 2 2 तक आ गए, ये 2 2 का माइनर निकालना है। तो ये 2 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है, देखिए आप, ये 2 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, देखो ये 2 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होता है 2, इसी 2 का माइनर निकालना है। तो क्या करना है आपको, उसी का रो, उसी 2 का रो कॉलम, यानी ये 2 2, याचा अर्थ दुसरी आडवी लाईन आणि दुसरी उभी लाईन डिलीट करायची। म्हणजे हो काही दुसरी आडवी लाईन आणि दुसरी उभी लाईन डिलीट करा। जे 4 एलिमेंट रहतात त्याचे डिटरमिनेंट सॉल्व करा, 2 3 3 2, तो इसका डिटरमिनेंट हम सॉल्व कर सकते हैं, 2 3 3 2। अभी 4 -9 यानी कि कितना आता है, -5, ये हो गया m22। देयरफॉर C22 इज इक्वल्स टू C22 यानी कोफैक्टर -1 रेज टू 2 + 2 इंटू m22, -1 रेज टू 4, m22 की वैल्यू -5, -1 का 1 इंटू -5 यानी कि 5, ये हो गया C22। इसी तरह से अभी फिफ्थ हो गया, अभी सिक्स्थ, ऐसे 9 निकालना है, देखो 9 6। अभी सिक्स्थ क्या है, द माइनर ऑफ ये 2 3 विच इज डिनोटेड बाय m23 एंड विच इज डिफाइंड एज 3 2 के बारे में देखो, 3 2 यानी कि कौन सा, इसी एलिमेंट का माइनर निकाल, यहां तक आ गए, देखो 3 2, ये 3 2 यानी कि यहां तक आ गए, यानी कि अभी इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है, देखो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ये -1। ओके, तो इसका एलिमेंट निकालना है, इसका माइनर निकालना है, -1 का माइनर निकालना है। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम डिलीट करो,
-1 सेकंड रो और थर्ड कॉलम डिलीट करो। कौन से एलिमेंट रहते? 2 - 1 3 7, 2 - 1 3 7. Now solve this. 2 into 7 minus -1 into 3, that is a 14 minus 3, that is a 14 plus 3, that is a 17. Therefore, the cofactor which is equals to C23, which is equals to formula -1 raised to 2 plus 3 into M23, यानी कि -1 raised to 5 into 17, इसका मतलब -1 into 17 यानी कि -17 कितना आता है? -17 आता है। देखो -1 raised to 5, अगर -1 का ऑड पावर आता है तो उसकी वैल्यू माइनस ही रहते है, याद में रखिए। अगर -1 का इव्हन पावर, जर -1 चा कुठलाही सम पावर असेल तर त्याची व्हॅल्यू येते 1, आणि -1 चा जर ऑड पावर असेल 5 7 3 तर त्याची व्हॅल्यू असते -1. या दोन बाबी लक्षात ठेवा. कोणत्याही मायनस संख्येचा पावर जर ऑड असेल तर उत्तर मायनस मध्ये येतं, विषम, आणि कोणत्याही सम संख्येचा जर पावर -1 चा जर सम पावर असेल तर उत्तर येतं प्लस. व्हेरी गुड. माइनस आ गया माइनर, वेरी गुड बाबा साहेब, लेकिन माइनर आ गया, अभी को फैक्टर निकाल दो, दुबले बाबा साहेब दुबले. ओके, नाउ ये हो गया को फैक्टर. अभी कहां जाना है देखो आपको, ये 2 3 हो गया, ये 2 3 हो गया, ये 2 3, ये देखो A11 A12 A13 A21 A22 A23 हो गया. अभी ये 3 1 यहां आना है, इसका माइनर निकालना है. तो इसका माइनर निकालना है तो कैसा करना है, यहां पे आपको सी दिस, रिमूव दिस, रिमूव दिस, रिमूव दिस. ओके, तो यहां पे इसका माइनर निकालना है. तो उसी का रो और उसी का कॉलम डिलीट कर दो, यानी कि ये 3 1 का माइनर निकालना है 7. द माइनर ऑफ ये 3 1 which is denoted by M31, which is given by determinant, which are those elements here, -1 3 2 -1, -1 3 2 -1. Solve this. -1 into -1 -3 into 2 यानी कि 1 -6 यानी कि -5. The cofactor which is equals to C31, which is equals to -1 raised to 3 plus 1. ये जो भी है ना Cij का क्या है फॉर्मूला, Cij is equals to -1 raised to I plus j into Mij. Mij यानी कि माइनर, मीन्स M31 -1 raised to 4 into -5 1 into -5, that is equals to -5. ये हो गया C31. हाँ ओके गुरु, वेरी गुड. को फैक्टर भी वही चाहता था, 8 नंबर का, 9 एलिमेंट्स के निकालना है तो 8 नंबर का. नंबर 8, द माइनर ऑफ ये 32 which is denoted by M32, which is the determinant of element. कैसा लेना है देखो, अभी कहा गए हम, ये 32 को, ये देखो यहां तक इसका माइनर निकालना है. तो उसी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है, देखो ये 32 का, ये 7 है, तो उसी का माइनर आपको निकालना है. सी दिस, डिलीट फर्स्ट. अभी क्या करना है आपको, इसी का कॉलम और रो डिलीट करना है. 7 का रो और कॉलम डिलीट करना है. तो इसका कॉलम और इसी का रो डिलीट हो गया. तो कौन सा एलिमेंट रहता है, देखो यहां से क्या गया, देखो यहां पे क्या था, 1 था. सी दिस, दिस इज 1. ओके, तो 2 3 1 -1, 2
3 1 minus 1, that is 2 into minus 1 minus 3 into 1. तिरकस गुणाकाराची वजाबाकी -2 -3 -5. Therefore the cofactor Cij, which is C32 -1 raised to 3 plus 2 into M32 -1 raised to 5 into -5. हाँ, तो कितना आता है? -5. वेरी गुड. दुबळे बरोबर है. बाला साहेब दुबळे, वेरी गुड. निशांत, ओके निशांत, -1 raised to 5 यानी कि -1 into -5, that is equals to 5. निशांत आप नाम चेंज कर लो वहां से. तो इसी तरह से 8 हो गया. अभी 9th एलिमेंट का निकालना है. कौन से एलिमेंट का? 9th. सी दिस लास्ट एलिमेंट का निकालना है. ये 3 का. ये 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा? ये है 2. तो हम उसी को निकाल सॉल्व करते हैं. ये देखो, ये रो डिलीट, कॉलम डिलीट. 2 -1 1 2. लास्ट एलिमेंट 9. 2 -1 और क्या लिख सकते हैं? 1 2. ये क्या है? द माइनर ऑफ ये 3 विच इज इक्वल्स टू M33, यानी कि इसका मतलब 2 into 2 minus 1 into 1, that is 4 plus 1 यानी कि 5. means cofactor, the cofactor C33 which is equals to -1 raised to 3 plus 3 into M33. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत देर लगता है. that is a -1 raised to 6 into 5. इसका मतलब -1 का 6th पावर क्या आता है? +1 into 5, यानी कि आंसर आता है 5. ओके, हाँ बरोबर आहे. संकेत नरुटे, गुरव, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. ठीक आहे, अशा पद्धतीने हे सोल्युशन होतं. हाँ बरोबर आहे. निशांत बरोबर आहे, व्हेरी गुड, राईट. तर अशा पद्धतीने सर्वच्या सर्व एलिमेंटचे कोफॅक्टर्स आणि मायनर काढू शकता. तर मी तुम्हाला होमवर्कला प्रॉब्लेम देतो, मायनर आणि कोफॅक्टर काढायचे. लिहा प्रॉब्लेम. होमवर्क, find the minors and cofactors of the elements of given determinant of the given determinant. First 4 3 2 1 2 4 0 1 3. Second 1 0 1 2 1 2 2 2 3 2 3 3. Third 2 minus 3 5 1 0 minus 2 4 2 6. और लास्ट एलिमेंट है, अच्छी तरह से निकालना है. ये होमवर्क अच्छी तरह से करना है. देखो आपको, यानी कि इसका मतलब 2 1 2 4 minus 1 3 3 0 minus 5. ओके, इसी तरह से आपको ये सॉल्यूशन निकालना है. अच्छी तरह से सॉल्यूशन निकाल दो. तो यहाँ पे हम रुकते हैं. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लेम है. ऍक्च्युअली एका याच्यामध्ये 9 एलिमेंट्सचे प्रॉब्लेम्स तुम्हाला सॉल्व्ह करावे लागतील. तर अशा पद्धतीने तुम्ही सॉल्व्ह करा. तर या ठिकाणी आपण थांबू. नमस्कार.